Hello, Namaskar दोस्तों. I welcome you all in my online learning platform of Crack Grade B. Friends, we have completed all the three parts related to social security. So now it is a time for some multiple choice questions. So I have framed some questions which is based upon the social security. Friends, एक बात मैं और यहाँ बता देता हूँ. अभी मैंने सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं उनको कवर नहीं किया है. अभी मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है. इन सब्सिक्वेंट लेक्चर, इन सब्सिक्वेंट वीडियोस, आई विल कवर ऑल द act related to the social security. So friends, we have started a video lecture series for this industrial relation and labor laws and social security. And in this industrial relation and labor laws, we will cover all these topics in the video lecture series. Before moving ahead, I would like to inform you that we have prepared a study material for all these three subjects: industrial relation, labor law, social security, general accounting principle, and Indian economy. If you want to purchase this material, it will cost you 1699 for all these three material. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security, general accounting principle only, it will cost you 1499. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security only, it will cost you 1299. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे लिंक में सैंपल दिया है मटेरियल का. आप उसको जाके वहां से चेक कर सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं. और अगर आप ये मटेरियल हमारा खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com को जाके विजिट कीजिए. वहां पे मटेरियल सेक्शन में ईपीएफओ सेक्शन में जाके आप जैसे ही इस मटेरियल को परचेज करते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी. और अभी लॉकडाउन की वजह से we are not able to send the hard copy of this material, तो we have make a provision that आप इसको अभी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं as soon as आप जैसे ही इस मटेरियल को खरीदते हैं. So what is the first question for today? Friends, first benefit to women under maternity benefit was given by which one of the following province during British era? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी से लिया गया है. तो आपके ऑप्शंस हैं बॉम्बे, मद्रास, यूपी एंड असम. तो अगर आपने सोशल सिक्योरिटी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा होगा और जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया है, तो उसके बाद यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो फर्स्ट वी विल सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फ्रेंड्स, आंसर विल बी ए. इट मीन्स it was given by Bombay Presidency. Now we will see the explanation for this. Actually, it is interesting to know that the first Maternity Benefit Act was passed in 1929 by the Bombay government. And as a result of the recommendation of the Royal Commission on Labour in India, 1931, the Maternity Act were passed in other states like Madras, Uttar Pradesh and West Bengal 1939 and Assam 1944. तो we can say that बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी वो सबसे आगे थी मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को. तो ये क्वेश्चन मेरा फ्रेम करने का जो रीजन था, एक्चुअली आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आया था सबसे पहले कि ईएसआई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को सबसे पहले कब दिया गया था. ये 2017 के पेपर में आया था. तो उसका जो आंसर था दोस्तों वो ईएसआई एक्ट था 1948. तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम कर सकती है. तो बाय कीपिंग इन व्यू दैट आई हैव फ्रेम दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर यू. Now we will see what is the second question for today. Friends, social security needs changes according to the time and place. Lord Beveridge listed 8 kinds of primary conditions which demand social security. What are the primary conditions stated by the William Beveridge? एक्चुअली मैंने जब आपको विलियम बेवरेज के बारे में बताया था और उसकी एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसने कुछ 8 प्राइमरी कंडीशंस बताई थी फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन. तो वही आपको 8 कंडीशंस जो मैंने बताई थी आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस. तो योर ऑप्शंस ए आर हेल्थ बेनिफिट, रिटायरमेंट, मैरिज, फ्यूनरल एक्सपेंस. बी है मैरिज, फ्यूनरल एक्सपेंस, चाइल्डहुड, फिजिकल डिजीज और इनकैपेसिटी.
लॉस ऑफ लाइवलीहुड, रिटायरमेंट, मैरिज, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्यूनरल एक्सपेंस, चाइल्डहुड वेलफेयर स्कीम। तो आपने अगर वो मेरा वीडियो देखा होगा तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन वेरी इजीली. फर्स्ट वी विल सी फॉर आंसर. दिस आंसर इज बी. एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? सर विलियम बेवरिज, जिनको फ्रीडम फ्रॉम वांट से के नाम से इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी. इन 1942 सर विलियम बेवरिज हेडेड अ कमेटी दैट रिव्यूड द नेशनल स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस इन ग्रेट ब्रिटेन during the post-war period. Post-war means Second World War. In his report, he defined social security as follows. Social security needs vary and Lord Beveridge listed 8 kinds of primary condition which demand social security. तो इसका आंसर चेक करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको बताया था तो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, रिटायरमेंट, मैरिज, फ्यूनरल एक्सपेंस, चाइल्डहुड और फिजिकल डिजीज और इनकेपेसिटी, ये जो सारे के सारे पॉइंट हैं या ये जो सारे की सारी कंटिंजेंसीज हैं, ये विलियम बेवरेजेस की रिपोर्ट में उसने डिस्कस की थी. तो अब आपको मैच करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं. आप इसको देखो, मैं आपको एक मिनट रुकिए बताता हूँ. ये है, देखिए. आज जब आप उससे कंपेयर करोगे तो मैरिज, फ्यूनरल एक्सपेंस, चाइल्डहुड, फिजिकल डिसेबिलिटी और इनकेपेसिटी, ये आपको वहां से मैच करने से मिल जाएगा. तो इसका आंसर क्यों बी होगा? क्योंकि जब आपने इसको देखा, यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट दिए हुए हैं केवल किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी के अंदर. तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बी. तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. आप फ्रेंड्स पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ. My third question is, each year Labor Day is celebrated on 1st May. What is true with respect to the Labor Day in India? देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, when you are preparing for another exam or you are covering your current from different sources, तो recently it was in news. क्योंकि लेबर डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1st ऑफ May, तो इट वॉज इन न्यूज. और ये एक पेपर में दिया गया था, इधर इन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और किसी ना किसी करंट अफेयर्स में. ये आपको मिल जाएगा जिस भी सोर्स से आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो. तो ये क्वेश्चंस मैंने डायरेक्टली वहां से लिया है. तो तो अब इसको हम देखो सॉल्व करेंगे. पहले इसके ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों. लेबर डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1925. The Labour Kisan Party of Hindustan initiated the celebration. Comrade Singara Velar passed a resolution stating the government should allow everybody a national holiday on Labour Day. देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टिपिकल, क्योंकि इसके लिए आपको हिस्ट्री में घुसने की जरूरत नहीं है. लेबर लॉस की जो आप पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है. आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, इसके लिए आप कंफ्यूज मत हो. बट why this question is very important? Because it was in news recently. और यूपीएससी न्यूज से भी क्वेश्चन उठाता है. जस्ट लाइक आपको याद होगा, अगर आपने पेपर को एनालिसिस किया है और पेपर को डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के पेपर को, 2017 के पेपर को, तो इन दिस पेपर उसने एक करंट क्वेश्चन उठाया था डॉक्टर एक्रॉइड फॉर्मूला से, जो कि आपका पे रिवीजन से रिलेटेड था और उस टाइम वो न्यूज में था. तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन आप एग्जाम में कर सकते हो. एंड बाय कीपिंग इन माइंड आई हैव फ्रेम दिस क्वेश्चन फॉर यू. तो लेट्स सी द आंसर फॉर दिस. इट्स आंसर विल बी बी. दैट मीन्स 2 and 3. 2 and 3 आर द ऑप्शन विच इज करेक्ट. अब इसका देखते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन. देखिए, इन इंडिया लेबर डे वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1923, नॉट इन 1925. ओके, ये गलत है. 1925 नहीं है. इट वॉज सेलिब्रेटेड इन 1923. So after the Labour Kisan Party of Hindustan initiated the celebration and comrade Singaravelar Chettiar continued the celebration, and comrade Singaravelar was one of the leaders of the self-respect movement in the Madras Presidency and passed a resolution stating that government should allow everybody a national holiday on labor. तो ये करंट से क्वेश्चन लिया है और मैंने इसका आंसर आपको यहां बताया. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका करंट पोर्शन कवर हो गया फॉर सोशल सिक्योरिटी.
हाँ देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर मैंने एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रखा है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी में जितने एक्ट हैं उनको मैं एक वन गो में कवर करूंगा, क्योंकि एक्ट का मैंने एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है, वहां से मैं कवर करूंगा। इंडिविजुअली मैं एक्ट को डिफाइन नहीं करूंगा। तो आप एक्ट के लिए अभी चिंता मत करना, एक्ट को मैं बाद में कवर करूंगा, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा वीडियोज में। तो अगला क्वेश्चन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल सिक्योरिटी के आपस में रिलेशन को शो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया? आर्टिकल 51, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और नॉन। तो आप इस क्वेश्चन को लगाइए दोस्तों। मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल इसमें बहुत ईजी रखा है। इसका आंसर देखते हैं पहले। देखो इसका आंसर होगा दोस्तों है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करोगे इसको, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर्टिकल 51 को बाहर करोगे, क्योंकि आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है आपका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हो तो किससे रिलेटेड होगा? देखिए आर्टिकल 15 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस। तो इससे रिलेटेड है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए आर्टिकल 41 क्या करता है? आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन टू for securing the right to work, to education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and other case of undeserved want। देखिए जहां ये अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस वर्ड आ गया, समझ लो वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। नाउ व्हाट डिफाइंड आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हो गया ना दोस्तों क्लियर? तो आर्टिकल 41 यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। नाउ अब हम देखेंगे अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। इसको मैंने लिया है रिलेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, आईएलओ सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन नंबर 102 ऑफ 1952 इज द ओनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल that establish worldwide agreed minimum standards for all 9 branches of social security. Which one of the following is not envisaged in the convention? देखिए इसने 9 ब्रांचेस दी थी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड इस कन्वेंशन में, जो कि सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन के नाम से भी जानी जाती है। तो उसमें 9 ब्रांचेस दी थी, तो मैंने ऑप्शंस रखे हैं। इन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है कि उन 9 ब्रांचेस में से वो कौन सा बेनिफिट है जो उसने उन 9 ब्रांचेस के अंदर नहीं दिया था। तो नाउ योर ऑप्शंस आर सर्वाइवर बेनिफिट, इनवैलिडिटी बेनिफिट्स, एजुकेशन बेनिफिट और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। फर्स्ट वी विल सी आंसर फॉर दिस। वी विल सी आंसर फॉर दिस। आंसर विल बी सी। व्हाई सी? एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। देखो, द सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1952 नंबर 102 is a flagship of all ILO social security convention। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, बिकॉज ऑफ कि ये फ्लैगशिप है। बाकी तो बहुत सारी कन्वेंशन है, इतना टाइम आपके पास नहीं है आप सब पढ़ो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द ओनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द बेसिक सोशल सिक्योरिटी प्रिंसिपल दैट एस्टेब्लिश वर्ल्ड वाइड एग्रीड मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर ऑल 9 ब्रांचेस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। अब पहले मैं आपको वो 9 ब्रांचेस दिखा देता हूँ। देखिए इसकी 9 ब्रांचेस है। मेडिकल केयर, सिकनेस बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ओल्ड एज बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, फैमिली बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट और इनवैलिडिटी बेनिफिट। तो इसमें कहीं एजुकेशन का नाम नहीं आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो आंसर है एजुकेशन, वो एजुकेशन उसने उस टाइम उस कन्वेंशन में कवर नहीं किया था। तो आपका जो ऑप्शन होगा ना वो ये होगा, क्योंकि इसमें एजुकेशन बेनिफिट के बारे में बात नहीं की थी उस टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी तरफ से सारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स, व्हाट वी हैव कवर्ड इन आवर स्टडी मटेरियल, दैट इन जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक which we are going to discuss in video lecture series also. In industrial relation and labor laws we have covered all these topics, and in Indian economy we have covered a static part with very simple concept
और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मटेरियल जो है हम अपने यहाँ डिज़ाइन करते हैं बहुत ही रिलायबल रिसोर्सेज से, और 80 to 85% क्वेश्चन जो है वो हमारे मटेरियल से इन सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने ये सिलेक्शंस दिए हैं, ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं जो पिछले कुछ सालों में सेलेक्ट हुए हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने यहाँ डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।